Everyone, the board is visible and the audio is clear. Okay. Now, first we start the revision from the chapter number 18. Anyone has any doubt in chapter number 18, please ask. Okay. First, area of trapezium. Shraddha, can you tell me please what is the area of trapezium? Okay, half h or sum of parallel side. Good. This is the formula for this. और ये h हम आगे पीछे these all are in multiplication. So इसको हम आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं half h multiplied by sum of parallel side. Okay. Now the area of trapezium is half h multiplied by sum of parallel side. Now it is okay. Let us start some MCQ questions. Okay. First objective questions, then MCQ questions. So it will be better or easy for us. Okay. Now, first, okay, Shivani, read the first question from the exercise 18C. Mm-hmm. Okay. So, what is the area? We know the formula of area of trapezium is half h multiplied by this. So, what is the answer for this, Shivani? हाफ इंटू अभी हाफ ही में नहीं हाफ हो गया इंटू भी हो गया और 18 प्लस 14 इज व्हाट 32 now find the product 42 multiplied by 4.5 so 32 forza is what 30 yes 32 forza is 4 to the 8 and 4 3 the 12 and now half means 16 so 8 plus 4 is 14 1 carry 4 1 this is the answer okay और सभी को ऐसे ही आंसर निकालना है in the question if he or she want if you all want to save your time तो कैलकुलेशन ऐसे ही करना है प्लीज ठीक है वहां पर कैलकुलेशन दिखाना नहीं है यू हैव टू डू द कैलकुलेशन इन रफ सो remember the formula it is half h means we take the half h and sum of the parallel side and then fast multiply it okay clear अच्छा so the option so the option for 18C question number 1 is 144 the option is B okay read the question second some Saksham read the second question please सक्षम क्लास में है ना ओके युवा यू कैन रीड अरे क्या इतनी बार थोड़ा फास्ट किया करो ना ओके रीड द क्वेश्चन हम्म हाँ तो अब देखो यहाँ पर h इज इक्वल टू क्या होता है h इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन सम ऑफ पैरेलल साइड होता है यस नाउ वी हैव टू फाइंड द h सो सभी सभी को कह रहा हूं ये कि एवरीवन मेक द सब्जेक्ट लाइक दिस और फर्स्ट यू हैव टू मेक द सब्जेक्ट कि हमें फाइंड क्या करना है एंड देन पुट द वैल्यू एंड गॉट योर आंसर सो the area is 128 so what is the double of 128 or you can write 128 into 2 upon what is the sum of the side yuva 19 plus 13 is 32 tell me the answer first 16 के टेबल में 128 आता है कितने पे आता है
तो फिर इतनी देर से बोलते हो 16 8 = 128, तो इसको काट दिया तो नाउ द 8 इज आर आंसर। समझ में आई बात? द ऑप्शन सी इज द आंसर। तो अगर ऐसे सॉल्व करेंगे तो वी कैन सेव आवर टाइम फॉर रिवीजन, हम अपने रिवीजन करने के लिए टाइम बचा लेंगे। ओके ओके, नाउ सक्षम रीड द थर्ड क्वेश्चन। हम्म, नाउ सी, sum of parallel side is equal to area multiplied by 2 upon h. Yes? So we know that the ratio is there. So we know that ratio is there. This is 3x and 4x. Let. So it is 7x. Okay. So 7x is equal to the area is 630, I think. What is 630? 630 multiplied by 2 upon the height is what? 12. Okay. Cancel from here. Numerator, numerator and denominator, denominator. 7 nines are, it is 90. And this is 6. And 6, 1, 5, 15. So the x is equal to 15. X is equal to 15. Now Saksham, tell me, what is the shorter parallel side? What is the shorter parallel side? इतनी देर लगेगी क्या? Yes, Shivani, tell me. Yes, it's very simple. If the x is this, so there is 3 is to 4, so the smaller side is 3 into 15, that is 45. And if the question is to find the larger side, then we have to multiply with 4. 4 multiplied by 15, this is 60. ठीक है? Is that clear? इसी तरह से सॉल्व करना है शिवानी। एवरीवन टेक केयर अबाउट दिस। श्रद्धा सुन रहे हो? बिकॉज आई वांट कि एवरीवन स्कोर फुल ऑन दिस टाइम। सो दिस इज द वे। अब मुझे एक चीज ये पता चल गया है कि तुम्हारे को जो प्रॉब्लम और जो डाउट होता है ओनली बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन, सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से ही प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। सो बिकॉज ऑफ दिस आई एम टेलिंग यू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर? नाउ Shraddha, read the next question. Manjeet is there or not? Manjeet, read the next question. Okay, leave. Wait, Shraddha. Shraddha, you wait. You will wait. Your voice is not coming. I think the internet issue. Manjeet, read the next question number 4, please. What will be the area? This is 180. 180 times 2 upon 9. It is 20, so it will be 40. So जल्दी से इसको कैलकुलेट करके बताओ कि x is equal to क्या होता है मंजीत? x is equal to 5? तो x is equal to 5 नहीं हो सकता यार। Minus this is 34. 17 is the x. Yes. 17. X is equal to 17, and what we have to find in this? Longer. The length of the longer of the parallel side. So 17 plus 6 is what, Manjeet? And B is the option, 23. Clear everyone?
because in MCQ, in MCQ question, only the answer matters. Solution is not there. So don't show anything. Just do your calculation only like this. कि अब अच्छा वो एक और एक छः से ज़्यादा है so it will be x and x plus 6 तो हमारे दिमाग में लेट हो गया और we just write it and calculate it as fast as or as soon as possible. ठीक है. और तुम देख रहे होगे कि हमें इस कैलकुलेशन को करने में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा. क्वेश्चन को पढ़ने में, कैलकुलेट करने में और आंसर तक पहुंचने में ओनली वी जस्ट टेक 1 मिनट फॉर ईच. यस और नो? ठीक है. अब कौन बचा है? इज देयर एनीवन? रिया. रिया, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज. तो मुझे बताओगे रिया, सी एल इज इक्वल टू क्या होगा? ये होगा क्या? दिस द क्वेश्चन फ्रॉम रिया. ये रिया से मैंने क्वेश्चन पूछा है कि हाउ डू वी टेक आउट द हाइट. सी एल इज इक्वल टू अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ओनली रिया विल आंसर दिस क्वेश्चन. कैसे होगा? कैसे होगा रिया? This is 7 centimeter and this hole is 13 centimeter. And this is I think 5 नहीं है 7 है. 7. ओ तो ये मैंने फिर गलत लिखा ना, तो तुमने बोला होगा. कैसे होगा? आप बताओ. This is 10 square minus 5 square. Now this is what? This is 7 centimeter and now this is what? 13 minus 7 is 6. So it will be 100 minus 36 which is equal to under root 64 and which is equal to 8. So the height is equal to 8. Height is equal to 8. रिया देखो, मैंने अगर कुछ गलत किया तो तुमने यस सर नो सर कर दिया उसमें. दिस इज नॉट अ वे ना, यू हैव टू चेक. मैं जो बोलूंगा वो हमेशा सही नहीं हो सकता क्योंकि वी आर डूइंग आई एम डूइंग द कैलकुलेशन. तो कुछ मिस्टेक हो सकती है मुझसे भी. सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस. Now the height is 8 centimeter and the parallel side is 13 plus 7. What is 13 plus 7? Riya, 20. So the area is equal to 4 into 20 which is equal to 80. Yes or no? Please check it fast. So your answer is option C. Clear? And this is a test paper 18. This is a test paper 18 and in test paper 18 you have to do only that question uh, that is related to the chapter number 18 only. So in this I think there is only area of trapezium and polygon ना. मुझे समझ नहीं आया, तुम्हारी आवाज़ कुछ ब्रेक हो रही है. किसी को आवाज़ सुनाई दी हो तो प्लीज़ मुझे बताए क्या बोला उसने. श्रद्धा बोल रही है शायद. हम्म.
Acha. Shraddha, try to take a place where the internet is good, and then say some they then you can say something. I'm not able to understand your voice. Sorry. Okay. Now in the page number 212, in the question number B, you have to do the question that is related to the trapezium only. So, related to the trapezium is question number 12 and 13. Question number 12 and 13. Parallel side of a trapezium is 54 and 26, and the distance between them is 15. So, Shivani, I want you can tell me the answer, please. Yes, Shivani, tell me the answer, please. It is 15 means 7.5, and 54 plus 26 is what? Hmm? 80, na? Okay. 7.5 multiplied by this. So 7 8s are 56, and this is 40, and now this is 600. Yes, your answer is right. Okay. Manjeet, now tell me the answer of 13th question. Yes, an MCQ. Read the question first and tell me the answer. Mm-hmm. Hmm. Hmm. So find करो फटाफट 5x plus 3x, directly we can write 8x. 8x is equal to, the area is 384, then multiplied by 2 upon the distance is 12. Now calculate it fast. If the number is 8 से cancel हो रहा है क्या, तो हम इसे यहाँ से भी cancel कर सकते हैं. 8 8 8 8 yes 36 24 years आती है 24. ठीक है, यहाँ से ही काटते हैं इसको. 8 4 are 32. Yes, 8 4 are 32, and now 64. It is 48. 12 4 are. Answer is 128. ये 128 कैसे? नहीं, बिल्कुल ठीक है. यहाँ पर तुम्हारा x इज इक्वल टू 8 आया या नहीं आया सक्षम? आ गया ना. x इज इक्वल टू 8. नाउ 5 8 का कितना होता है? 40. तो लॉन्गर साइड इज 40 सेंटीमीटर. मंजीत ने अभी तक आंसर ही नहीं दिया. इतनी देर लगेगी मंजीत? इसीलिए देखो मैंने तुम्हें समझाया कि if the ratio is there 5:3, you just add it and write it like this. 8x is equal to area multiplied by 2 upon height. And then 8 से यहाँ पर cancel कर सकते हो. Don't make another step because you don't have to show any step to anyone. So simply 8 से cancel किया यहाँ पर, फिर 12 से cancel किया, we get 8. The ratio, basically the common ratio is 8, and now 8 5s are 40. Clear? अभी कोई डाउट है प्लीज? नाउ प्लीज अब मुझे ये बताओ कि किसी को इसके बाद भी कोई डाउट है, और दिस इज द वे हाउ यू डू द कैलकुलेशन. शिवानी, नाउ यू क्लियर हाउ टू डू योर कैलकुलेशन? Saksham, Manjeet, Yuva, Ria, so many students are there, so only one student say yes. Everyone clear how to calculate this? You can make a subject. जो चीज फाइंड करना है उसको एक साइड लिखो, और जो गिवन है उसको एक साइड लिख के उसे कैंसिल करो. Then you all will able to save your time. Shraddha,
Your voice is not coming. Okay. Now, anyone has any doubt in this chapter number 18? Good. So now we can move on next three-dimensional figure. And in three-dimensional figure, uh, how many shapes are there? Okay, one by one, I will ask with every student. Okay, first start with Saksham. Sak cuboid. Now tell me what do you know about cuboid? Okay. Uh-huh. बस ठीक है. And one more important thing, all sides are parallel. Opposite sides are parallel. All sides are parallel. पैरेलल तो हमेशा अपोजिट साइड ही हो सकता है ना, ऑल साइड कैसे पैरेलल होगा? हम्म. अपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल रेगुलर, मतलब अपोजिट फेस जो है वो बराबर होगा, इक्वल होगा. ठीक है सक्षम. अपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल मींस रेगुलर इन शेप, मतलब रेगुलर क्या वो बराबर होगा. आइडेंटिकल मींस दैट द फ्रंट फेस एंड द बैक इज सेम, having a same dimension, top and bottom having a same dimension, and two sides having a same dimension. So opposite faces are identical. दोनों एक शेप होगा. Okay, now the next second one is Manjeet, cube. सॉरी नहीं, प्लीज थिंक. एक बार सोच लो फिर बोलो. हम्म. Length, breadth and height all are equal means the cube is a regular shape. Yes, means all the faces are equal. All the faces are equal. That is why it is a regular. अच्छा मुझे यहाँ बताओ एक चीज तुम मंजीत, कि how do we find out the diagonal of a cube or cuboid? You know how to find the diagonal of cube or cuboid? मालूम है ये फॉर्मूला? वेट शिवानी. सक्षम. तो तुम्हारे डाउट्स क्यों नहीं है भाई? यस शिवानी, टेल मी प्लीज. No, it's not by Pythagoras theorem. The formula for this is L square plus h square base square plus height square under root. ये कहीं लिखा होना चाहिए, और नहीं लिखा हुआ है तो प्लीज नोट डाउन दिस. कहीं ना, आई थिंक इट इज गिवन इन अ, यस चैप्टर, यस एवरीवन सी chapter 20 page number 219. तो मंजीत क्यों नहीं आता ये? अरे वाह, कितना आराम से बोलते हो सर, भूल गए. भूलने के लिए पढ़ाई करते हैं हम. सक्षम, तुमने तो भाई पढ़ा ही नहीं लग रहा है. सर मेरे को नहीं आता बोलते हो सिर्फ. So the diagonal of cube and cuboid. If we have to find the diagonal of a cube of, basically this is not a diagonal, it is a cross section basically. Means if we draw a face like this and there is another face, so अगर ये cuboid है तो इसका मतलब जो diagonal है वो ये वाला है. This is basically called the diagonal.
ठीक है, इज दिस क्लियर और नॉट? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पर, याद रखना। मतलब ये, दिस इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन, जिनको नहीं मालूम था वो नोट डाउन कर लें। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रायंगुलर प्रिज्म। मंजीत, मंजीत ने बता दिया। ओके शिवानी। ओके एंड प्लीज टेल मी द शेप ऑफ द sides, shape of the faces. All are rectangle or are triangle like this? Mhm. Yes, means the top and bottom. Yeah, sideways is the rectangle. Sorry, sideways is the triangle, and base and the sideward or either by the top or bottom, वो तुम खुद justify कर लो. तो that is a rectangle. ठीक है, good. Two triangular faces and three rectangular faces. Good. Okay, next और कौन है? युवा। स्क्वायर पिरामिड। हम्म। हम्म। गुड। एंड ऑल फेसेस के बारे में। गुड, means the bottom is the square and the side is the triangle. Yes, right. And hmm, अब कौन बचा? रिया, रेक्टेंगुलर पिरामिड। गुड। And the last, Shraddha, are you able to, your now your internet connection is good or not? Okay, now tell me about the triangular prism. This is a tetrahedron. Hydron. Mm-hmm. Good. Good. So I think now everyone clear with this chapter. और इस चैप्टर में तो कुछ है नहीं। और शिवानी, नाउ टेल मी द यूलर्स फॉर्मूला। यस, डोंट ओपन द बुक, बुक ओपन करने की क्या जरूरत पड़ रही है? Yes. So this is the Euler formula. If there is, if maybe there is question in your PT9, then you can use this Euler formula to find the number of vertices, edges, anything. Okay. Now let us uh, wait. I discontinue this class and now send the link again to your group. Okay. Now everyone join. Yes. Yes, sir. Good, very good. So Yes, sir. good. Now let us start the revision of chapter 20. Or anyone has any doubt anywhere in
चैप्टर नंबर 18, 19 एंड 20 प्लीज आस्क, वो पूछ सकता है इन बिटवीन द क्लास नाउ। किसी को कोई डाउट है पहले से? अच्छा ठीक है, चलो किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं ही करता हूँ। सो नाउ प्लीज टेल मी 1 लीटर इज इक्वल टू डैश मीटर क्यूब। ये आंसर करेगा रिया। रिया आंसर दिस क्वेश्चन प्लीज। 1 लीटर इज इक्वल टू डैश मीटर क्यूब। रिया इज नॉट देयर। ओके, Sir, CZ. यस, हु? रिया इज नॉट देयर इन क्लास। सक्षम। Sir, C is in the class. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सर 0.001। 0.001। शिवानी नाउ 0.001। प्लीज इन सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब? शिवानी। Sir, 0.1. 0.1 is the wrong answer. 1 liter is equal to 0. हाँ 1000। Yes, it is 1000 centimeter cube because 1 liter is equal to 1000 ml and 1 ml is equal to 1 centimeter cube. So that is why 1 liter is equal to 1000 centimeter cube or ml. Clear, Shivani? Yes, sir. ओके, अब यहाँ पर एक चीज था जो डायगोनल ऑफ वो बता रहे थे हम। तो डायगोनल ऑफ जो अभी हमने फॉर्मूला किया है उसके अंदर एक और चीज होता है। वो हमने क्यूब और क्यूबॉइड के लिए दोनों के लिए कॉमन देखा, ठीक है। बट वी नो दैट इन क्यूब diagonal of cube, we know that all the sides are equal. So diagonal of cube is equal to अंडर रूट 3a, ठीक है। समझ आया ये? Yes, sir. ये वहां सर। पर हमने पढ़ा था ना डायगोनल, तो वो जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हम यहीं पहुंचेंगे बिकॉज एल और वहां पर क्या है, एल इज इन क्यूब एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच, ठीक है। तो एल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो इट मीन्स दैट ऑल आर सेम, सो इट विल बी 3x square under root 3x square means under root 3x and x is basically the side. A or x both are the sides. So हम फिर वही इस फॉर्मूले में पहुंच जाएंगे। सो डायरेक्टली वी कैन यूज द डायगोनल ऑफ क्यूब इज अंडर रूट 3a। क्लियर? अभी किसी को कोई डाउट ये है Yes, तो सर। sir. प्लीज पूछना है। Yes, sir. एंड डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो डिफरेंस समझ में आ गया है यहाँ पर डायगोनल्स के लिए। ये सर। Yes, sir. सो एवरीवन ओपन द पेज नंबर 229। Everyone open the page number 229. This is exercise 20C. अब मुझे ये बताओ कि how many students have finished this exercise? किसने सर कंप्लीट कर अप लिया टू ये 10 एक्सरसाइज? क्वेश्चंस आई हैव डन। हाँ, यस, कोई भी नहीं है जिसने कंप्लीट सर किया है? 10 क्वेश्चंस आर डन। 10 questions are done. Sir, I have also done question number till question number 8 or 9. तो ये क्यों गलती क्यों है ये? Why you are doing like this? Why you all are doing like this?
I tell you कि exercise 20 से you have to do in homework and you know कि this is a MCQ question. तो ये जो 20C है this is related to the exercise 20A also that is coming in your UT. तो तुमने ऐसा क्या सोचा, क्यों सोचा कि क्वेश्चन नंबर 8 तक ही होगा? नाउ सी क्वेश्चन नंबर, अभी जो मैंने बताया ये क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 और वी फिनिश दिस एक्सरसाइज 20B और नॉट? Yes, sir. तो फिर अगर मैंने 20B से कोई क्वेश्चन लिख दिया तो क्या होगा, नहीं करोगे? करना है बिकॉज वी नो Yes. एवरीथिंग, इसीलिए दैट इज व्हाई आई वांट कि यू कैन फिनिश एक्सरसाइज 20C प्लीज बिफोर द टेस्ट टुडे, बाय टुडे ओनली। आज ही करना है इसको कंप्लीट। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 और 16 देखो जो डायगोनल पे बेस्ड है। द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 4√3। Yes, read the question, Shivani, please. Question number 15. The diagonal of a cube is 9 3 under root centimeter long. 9 नहीं है, Its 4 है। total surface area. Question number 15 from the exercise 20C. The diagonal of a cube measures 3 under root centimeter. Its volume is तो अब यहाँ लिखा हुआ है कि diagonal is 4√3 and what is the formula for the diagonal of cube, Shivani? 3a under root. Under root 3a is equal to 4√3, so a is equal to what? 4. तो इस क्वेश्चन में अगर लिखा है कि यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम और अगर मैं लिख दूं कि यू हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया, तो ये क्या 20 एक्सरसाइज से मैच नहीं हुआ? Yes, sir. तो फिर so please everyone must have to finish this exercise 20C. Now it is clear or not clear? Sir, The clear. clear. Good. और तुम्हारे पास डाउट्स ही नहीं होते, दीज आर द डाउट्स। अरे खुद ही तुम्हारे को डाउट्स क्रिएट करने हैं अपने लिए। श्रद्धा, रिया, नाउ क्लियर? रिया अभी तक नहीं आई क्या क्लास में? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. हाँ तो बोलना है। तो नाउ इट इज क्लियर? ओके श्रद्धा, Yes, रीड Yes, द sir. sir. रीड द Yes, sir. नेक्स्ट Yes, sir. रीड द नेक्स्ट 16th क्वेश्चन। Sir, me. यस। The diagonal of a cube is 9 under root 3 centimeter long. Its total surface area is बताओ अब क्या आंसर होगा? इफ द डायगोनल इज 9 sir, अंडर रूट 3 sir तो 9 अंडर रूट 3। equal to under root 3a. हाँ तो अब निकाल के बताओ ना, 3 तुम टोटल सरफेस एरिया बताओ, मुझे ये मत बताओ कि a इज इक्वल टू क्या है। नाउ द टोटल सरफेस Yes, एरिया sir. निकालना है ना। Yes, sir. क्या होगा बताओ? The 6 into 9 square. हाँ तो 81 इंटू 6 करके फटाफट बताओ ना। The 648। 486. यस Sir, 486। 486. यस 486 मैंने लिख दिया। यस श्रद्धा बोलो क्या हुआ, नहीं समझ आया? Sir, आया. चलो गुड। तो इनको देखना है और हमें अपना टाइम बचाना है, और तुम लोग टाइम नहीं बचाना जानते। टाइम मैनेजमेंट इज द फर्स्ट की टू द स्टूडेंट्स। टाइम को मैनेजमेंट करो, टाइम का मैनेज नहीं करोगे तभी कोई ऐसा स्टूडेंट है, कोई अभी तुम्हारे नाउ देयर इज 8 स्टूडेंट और 9 स्टूडेंट इन क्लास 8, और कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मैथ्स में 20 लेके आया इन ऑनलाइन क्लासेस। किसी का कोई पीटी 1 से लेके टिल पीटी 9, is there any student who scored 20 full marks in any PT? कोई है ऐसा? मंजीत? शिवानी? Sir, I have not remembered. हाँ तो आप देखो ये यही तो, मुझे फुल आएगा तो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा कि मुझे 9th क्लास में PT 9 में 20 मार्क्स आया था।
सॉरी 8th क्लास में। तो प्लीज कोशिश करना है फुल मार्क्स के लिए। वी हैव टू गो फॉर अ फुल मार्क्स एंड विद अ फुल पोटेंशियल। ओके, इसलिए कुछ भी नहीं छोड़ना। ट्राई टू रिमेंबर दिस, कुछ भी नहीं छोड़ना एंड मेक योर टाइम। टाइम को अपना टाइम को मैनेज कर लो। ओके यही तो मुझे अच्छा। इफ अब जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड द मंजीत रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। Manjeet, read the question number 17. Okay, I think the Manjeet is not there. Saksham, Yes, sir. If question each number side of 17. a cube is double, then its volume. ठीक है, अब कह रहा है क्या, साइड को डबल कर दिया, साइड इज डबल, तो वॉल्यूम का क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? व्हाट इज अबाउट वॉल्यूम? सक्षम, गिव मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर सपोज मैंने इसको वॉल्यूम को हटाया और मैंने लिख दिया कि सरफेस एरिया क्या होगा, सो इफ आई राइट सरफेस एरिया, तो उसका मतलब बताओ कि तुम क्या निकालोगे, लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया। यस Sir, total surface area. यस, Sir, अगर कहीं total पे तुम्हें surface. सरफेस एरिया दिखा है तो इट मींस दैट यू हैव टू गो विथ टोटल सरफेस एरिया, नॉट विथ लेटरल सरफेस एरिया। So see, if the question I see, suppose I change the question like this, if the side is double, then what about the surface area? क्या होगा बताओ, जल्दी से बताओ। अब इतनी देर Sir, में double. डबल होगा? अच्छा, शिवानी का आंसर डबल है। लेट अस सी, सपोज द साइड इज x, नाउ द डबल इज 2x। सरफेस एरिया, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया शिवानी? Sir, 2 into नहीं, मैं इसको 2 वन बार, into LB, 2 इंटू, length into breadth plus breadth into height plus height into length. शिवानी इट इज अ क्यूब, आई थिंक इट Sir, इज अ 2 क्यूब, into इट इज अ क्यूब। और मैंने Sir, लेट 2 किया है, into हाँ, Sir, 2 into um Sir सरफेस एरिया becomes का 8 फॉर्मूला 2 2 इंटू, times. क्या कर रही हो शिवानी, व्हाट आर यू डूइंग? आई एम टेलिंग यू दिस इज अ क्यूब। फर्स्ट थिंक अबाउट योर, फर्स्ट थिंक व्हाट आई एम आस्किंग, उसके बाद बोलो ना। बार बार 2 बोल रहे हो, मैं उसको काटने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम बार बार 2 बोल रहे हो। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6L स्क्वायर, अभी तो किया थोड़ी देर पहले। एंड इफ सी द लेट द साइड इज, अब इसके लिए मैंने 1, x को हटा दिया, मैंने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, नाउ इट इज डबल। फाइंड आउट द टू सरफेस एरिया, 6L स्क्वायर के साथ निकालो, एक में L डालो Becomes और एक में 2 4 डालो। times. It will be 6 and it will be 24 times 4. The surface area will be 4 times. क्या करते हो पता नहीं sorry तुम? sir, It's I okay, thought it's it okay. is a cuboid. See, first try to concentrate what is here. That is why I इसलिए मैंने लिख दिया कि it is a cube. ओके, और यही मिस्टेक तुम्हारी एग्जाम में होती है और तुम हमेशा 1 या 2 नंबर मिस करते हो। Every time you are scoring like 16, 17, 18, maybe 19, but not 20. This is the reason. Sir, in PT5 I got 20. तो ठीक है, एक पीटी में आया। आई वांट टू सी इन द नेक्स्ट पीटी आल्सो। PT5 मैंने लिया था Okay क्या? sir. मैंने लिया था PT5। Yes sir. अच्छा ठीक है, वेरी गुड, गुड, वेरी नाइस। तो फिर ऐसी गलतियां क्यों करते हो? बी सीरियस वाइल स्टडिंग, बी सीरियस अबाउट योर टॉपिक, लिसन। हमेशा कान और आंख खुले रखना जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो। ओके, नाउ इट इज क्लियर कि कैसे हम इसका टाइम्स देखेंगे। Yes. वी जस्ट टेक अ वैल्यू लाइक दिस Yes. 1, एक का 1 मान लिया, डबल कर दिया 2, उसके बाद सरफेस एरिया निकालेंगे एक का, सरफेस एरिया दूसरे का, और उसे देखेंगे कितने टाइम्स है वो। इज इट बी क्लियर और नॉट? Yes sir. Good, very nice. Okay, now read the question next. Question number 18, Shivani. Oh, sorry. Wait.
अच्छा, ये तो मैंने सरफेस एरिया किया था. सपोज इट इज अ वॉल्यूम. सपोज इट इज अ 8 वॉल्यूम. times. देन Sir, 8 सपोज इट इज अ times. वॉल्यूम, तो क्या होगा? सिंपल है, साइड 1 और 2 है तो वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू 1 हो गया, और वॉल्यूम 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 टाइम्स 3, 2 विद द पावर 3 इज इक्वल टू, शिवानी Sir, 6. Sir, 8. क्या Sir, हुआ? 8. सॉरी, मैं सॉरी बोल देता हूँ कि मैंने तुम्हें डांट दिया. प्लीज, 2 विद द पावर 3 इज इक्वल टू वॉट? ध्यान से पढ़ो, कॉन्सेंट्रेट. इट्स 8. सो इट इज 8 टाइम्स. इफ द क्वेश्चन इज, देख लो यहां पर ये क्वेश्चन अगर आएगा तो यू कैन चूज. ये किया हुआ क्वेश्चन है, दैट इज वाई हम ऐसे क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो हमारे को आंसर्स याद हो जाते हैं. If the question is about the volume, then it will be 8 times. If it is about the surface area, then it will be 4 times. Clear, everyone? Yes, sir. Okay. Yes, sir. और ये याद रखना है, और इसमें एकदम इमिडिएटली ऑप्ट करना है. इसमें कोई कैलकुलेशन उस टाइम नहीं करनी है, हमें याद रखना है कि ऐसा होता है. अच्छा. Other questions are related to the exercise. These are the some questions which are not हमने नहीं पढ़ा एक्सरसाइज उसमें 20A एंड 20B में. दैट इज व्हाई आई डिस्कस दिस क्वेश्चन. और कोई क्वेश्चन है जिसको कोई डाउट में है उस क्वेश्चन में? ओके. यस, देयर इज वन मोर क्वेश्चन एट द लास्ट. 30th क्वेश्चन. 30th question, everyone open the page number 230 and see the question number 30. 30th क्वेश्चन. ऐसा क्वेश्चन हमने किया है क्या वहां पर एक्सरसाइज में? नहीं, देर इज नहीं, ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं था. So the ratio of the radius of two cylinder is 2:3, and the ratio of height is 5:3. Then the ratio of their volume, या वॉल्यूम है और सरफेस एरिया भी हो सकता है. So R1 is to R2 is equal to 2 okay, by 3. 2 by 3. It means that 2R is to 3R, and H1 is to H2 is equal to 5H 5. 5H ratio 3H. 3H. Okay. Now this question is related to the volume, so V1 is to V2. Okay, or you can write like this, V1 upon, and check what is the shape is this. Volume of what? The ratio of the cylinder. It is a cylinder. So volume 1 upon volume 2 is equal to, say it is a cylinder, so pi r square h, and now pi r square h. Here the pi and pi is cancel. Okay. Yes, sir. Sorry. And now it is, sorry, put the value in this. 2r square into 5h upon 3r square into 3h. तो ये h तो वैसे ही कैंसिल हो गया, और इट इज 4r स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3. तो ये r स्क्वायर और r स्क्वायर भी कैंसिल कर दो, और यहाँ फिर कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इट मे बी द 20:9 3 Sir, 20 ratio 27. yes. This is 20 is to 27. And suppose this is related to the volume, or if this question is related to the surface area, then total surface area, you can use total surface area. Okay, total surface area in 1 and 2, and you can find the ratio by putting the values. समझ में आई बात? Or if it is a curved Yes, sir. surface area, then you can write curved surface area 1 upon curved surface area 2 and put the value and find the ratio of the
curved surface also. Now, now is there any doubt? No, sir. No, sir. समझ आया? Yes, सर sir. ये क्वेश्चन समझ नहीं आया. कौन सा ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आया? यस सर. जो वॉल्यूम निकाला तुम्हें समझ में नहीं आया कि वॉल्यूम का रेशियो कैसे निकाला? यस अच्छा, सर. ठीक है, तो तुम एक बार क्वेश्चन को पहले रीड करो क्या लिखा है इसमें. क्वेश्चन नंबर, रीड द क्वेश्चन नंबर 30 प्लीज. Shraddha. The ratio of the radii of two cylinders is 2:3 and the ratio of their height is 5:3. The ratio of their volumes will be अच्छा, ये जो तुमने रेडी बोला ना, उसको रेडियाई बोलो. radii. यस, इट्स अ प्लूरल ऑफ रेडियस. रेडियस का जो है प्लूरल होता है रेडियाई. इट इज अ रेडियाई एंड द sir. रेडियाई इज इन द रेशियो ऑफ 2:3. तो मैंने लिख दिया R1:R2 इज इक्वल टू 2R:3R. कोई कंफ्यूजन है इसमें? No sir. गुड. सो H1:H2 इज इक्वल टू 5H:3H. इसमें भी कोई देखो, इसको H इसलिए लिखा है, इसको R इसलिए लिखा है कि हमें जब हम लिखेंगे तो हम समझ डिफरेंशिएट कर पाए कि ये R की वैल्यू है और ये H की वैल्यू, हाइट की वैल्यू है, बस. नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम. तो उसके लिए हम लिखेंगे V1/V2. ये रेशियो निकाल रहे हैं. V1 मीन्स वॉल्यूम 1. Just a moment. This is volume 1 and this is volume 2. Clear? And now Yes, the sir. volume of cylinder का formula बताओ तुम. What is the formula? Pi r square h. तो यही लिखा है ना मैंने, पाई आर स्क्वायर एच. यही फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर. Yes sir. अब ये पाई और पाई कैंसिल हो गया. न्यूमरेटर कैंसिल पे डिनोमिनेटर. नाउ आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो सॉरी फर्स्ट आर की, तो इट्स 2R. तो ये पुट कर दिया यहाँ पर 2R का होल स्क्वायर. ठीक है. फिर उसके नीचे आते हैं, 3R है तो यहाँ पर 3R का स्क्वायर पुट कर दिया. नाउ इट इज मल्टीप्लाइड बाय H. तो पहला H है हमारा 5H और दूसरा H है 3H. उसके बाद इसे कैंसिल किया और जब ये कैलकुलेट किया तो हमारे पास बचा 4 × 5 एंड 9 × 3. तो 4 5 सा 20 हो गया, 20/27. तो जब हम इसे रेशियो में लिखेंगे तो दिस इज 20:7. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes sir. और अगर तुम्हें रेशियो निकालना होगा टोटल सरफेस एरिया का, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख के उसका रेशियो निकालोगे. अगर तुम्हें रेशियो निकालना होगा कर्व सरफेस एरिया का, तो यू कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड देन पुट द वैल्यू एंड फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया. मींस either the surface area or the curved surface area. Clear everyone? Yes sir. Yes, sir. So Yes, sir. best of luck for you to your PT9. And Sir. Thank you sir. still we have time, 5 6 or 8 hours. So Thank you, you sir. can do practice or revision, or if you find any problem you can send me in my personal WhatsApp. I will try to sort it out. Okay, Okay, sir. bye bye, take care everyone. Okay sir. Thank you, sir. Thank you, sir.